Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum first year students. The topic which we are going to discuss today is the thorax. This is the normal structure of the human skeleton. The upper part of the human skeleton is divided by a muscular-tendinous structure which is called the diaphragm into two cavities. The upper part is the thoracic cavity while the lower part is the abdominal cavity. Now we are going to focus on only the thoracic cavity. The skeleton which surrounds the thoracic cavity is called the thoracic cage. It is basically osteocartilaginous structure, which means it is an elastic structure. Like एक स्पेसिफिक अमाउंट तक जब हमारे पास इंट्राथोरेसिक प्रेशर चेंज हो, इंक्रीज या डिक्रीज हो, तो इसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि ये अपना साइज उसके अकॉर्डिंगली इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द बाउंड्रीज ऑफ द thoracic cage. Anteriorly, it is bounded by a bone which is known as the sternum. This is the sternum. Laterally, on both sides, it is bounded by the ribs, and posteriorly, it is bounded from T1 to T12 vertebrae. Now we are going to discuss each and every bone which forms the thoracic cage in detail. The first bone which we are going to discuss is the sternum. Sternum के basically हमारे पास three parts होते हैं. Upper part इसका ये manubrium. This one is the body of sternum, and the tip here is the pointed tip जो होती है. This is called the xiphoid process. Now we are going to discuss the manubrium. ये जो आप slightly सा dip उसके superior border के ऊपर देख रहे हैं manubrium के, this is known as the jugular notch or the suprasternal notch or the intraclavicular notch, which means between the clavicles. It is usually present, अगर आप posteriorly इसको देखें तो इसके posteriorly हमारे पास T2 vertebrae के level पे होता है. The significance of this sternal notch is that कि either one or the two palpating finger method से हम यहाँ पे trachea को manually palpate कर लेते हैं in every presenting patient. The second part of the sternum is the body of the sternum, which forms the two important bony landmark. सबसे पहले जो ये मेन्यूब्रियम के साथ बनाता है उसको मेन्यूब्रोस्टर्नल जॉइंट कहते हैं, जिसको हम स्टर्नल एंगल और द एंगल ऑफ लुईस भी बोलते हैं. द अदर वन इज जो बॉडी ऑफ स्टर्नम हमारे पास ज़ीफाइड प्रोसेस के साथ बनाता है, दैट इज द ज़ीफी स्टर्नल जॉइंट. ये जो हमारे पास एंगल ऑफ लुईस है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन डिटेल. As you can all see that this angle is present at the level of the second rib along with its costal cartilage. तो जब भी हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करता है तो मैनुअली उसमें रिब्स की पैल्पेशन जो करनी होती है, सबसे पहले हम ये एंगल फील करते हैं. वहाँ से जो रिब हमारे पास होती है उस लेवल पे उसको सेकंड रिब कहते हैं. फर्स्ट रिब मैनुअली पैल्पेट नहीं होती. सेकंड रिब से डाउनवर्ड फिर हमारे पास काउंटिंग ऑफ रिब स्टार्ट हो जाती है. इसका बोनी लैंडमार्क का सिग्निफिकेंस ये है कि इस लेवल पे हमारे पास जो होता है ट्रिकिया, वो इनटू टू प्रिंसिपल ब्रोंकाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं, वो हमारे पास इस लेवल पे आके अपने दो प्रिंसिपल ब्रोंकाइज में डिवाइड हो रहा है. एज यू कैन ऑल सी कि आर्च ऑफ एओर्टा इज दिस वन. ये जो कर्व पार्ट है, दिस इज कॉल्ड द आर्च ऑफ एओर्टा. ये स्टार्ट भी हमारे पास एंगल ऑफ लुईस के लेवल पे हो रही है और इसका एंड भी हमारे पास एंगल ऑफ लुईस के लेवल पर हो रहा है. द डिसेंडिंग एओर्टा इज दिस वन. ये भी हमारे पास एंगल ऑफ लुईस के लेवल पे बिगिन होती है. दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि जब हम आर्च ऑफ एओर्टा को हटाएं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एंगल ऑफ लुईस के लेवल पे दिस इज द पल्मोनरी ट्रंक. Pulmonary trunk divides into the two pulmonary arteries just below this level. So ये हमारे पास इसकी significance है. Coming to the third important bony landmark, which is the Xiphi sternal joint, जो कि body of sternum and xiphoid process के दरमियान बनता है. अब इस पॉइंट की सिग्निफिकेंस ये है कि हमारे पास एज यू कैन ऑल सी कि 7th कोस्टल कार्टिलेज के साथ 8th, 9th और 10th कोस्टल कार्टिलेज के कार्टिलेजेस फ्यूज़ करते हैं और वो आके हमारे पास इस एंगल पे, जिसको हम ज़ीफी स्टर्नल जॉइंट कह रहे हैं, वहाँ पे आके इनकी अटैचमेंट होती है. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये सारे कोस्टल कार्टिलेजेस आके हमारे पास ज़ीफी स्टर्नल जॉइंट पे अटैच्ड हो रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास एपिगैस्ट्रिक फोसा का डिप्रेशन भी होता है. क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अब हमारे पास स्टर्नम के जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं. वन इज़ द पेक्टिस कैरिनेटम, जिसको हम फनल शेप चेस्ट कहते हैं. इसमें बेसिकली स्टर्नम का जो लोअर एंड होता है वो हमारे पास डिप्रेस्ड हो जाता है. दिस इज़ द नॉर्मल चेस्ट और इसमें हमारे पास स्टर्नम डिप्रेस्ड है जो कि फनल लाइक क्या कहते हैं डिप्रेशन देती है. The second one is the pectus excavatum, which is referred to as a pigeon shaped chest. इसमें स्टर्नम जो होती है वो हमारे पास फॉरवर्ड प्रोजेक्शन शो करती है लाइक द कील ऑफ अ बोट, और उसके इर्द गिर्द हमारे पास जो चेस्ट होती है वो फ्लैट होती है. ये नॉर्मल चेस्ट और यहाँ पे हमारे पास ये पेक्टस एक्सकेवेटम एंड दिस इज द पेक्टस कैरिनेटम. और जो सेकंड पॉइंट इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर हमारे पास बोन मैरो का इसमें हमें सैंपल लेना होता है तो हम वो अपर हाफ ऑफ मेनिब्रोस्टर्नल
जॉइंट से लेते हैं, यानी मेनिब्रोस्टर्नल जॉइंट है, इसके अपर हाफ से हम पंक्चर लेंगे, बिकॉज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लोअर हाफ के ऊपर आर्च ऑफ एओर्टा की इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं।